बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास क्या कंसिडर की जाती है। अमूमन हम रिपोर्ट राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट वी वांट टू हाईलाइट इन आवर प्रोफेशनल कैरियर। In today's lecture, we will discuss what is a plan for preparing a formal report or formal report writing. First of all, you have to identify the readers. Who are your readers? It's mean you have to see the status of your readers and the caliber and the level of your readers. कि आपका जो रीडर है वो किस सतह पे है या किस लेवल पे है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे डेवलप होती है। क्या वो रीडर जो है आपका एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, या वो रीडर आपका कोई सीनियर है, या कोई मैनेजर है, या किसी वो ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर बैठा है। इट्स नेसेसरी फॉर यू टू consider the position of your reader. It's mean the status of your reader is very much important for your report writing. After that, you have to determine your purpose. What is your purpose, or what you want to write in your report? If you are not clear about your purpose, you can never ever write a proper report. You can never ever write a good report. If you want to make a good report, or if you want to write a good report, it is necessary for you to be clear and be specified about your purpose, about your goal, about your target. What do you want to write? It is necessary for you to see the purpose of your thoughts, to see your thoughts and what you want to express in your report. After that, at third level, you have to formalize, or you have to specify your questions. Which are your questions, and what are the most important aspects of your questions? It means you have to highlight all the important part of your questions. Suppose if you have 2 or 3 questions in your report writing, it is necessary for you to put all the information related to that 3 and 4 questions, and you have to put all the materials related to that questions. If you do not put the specified and specific material related to your question, it means you will dissatisfy your readers. It means you will lose, and you will lose the content, and you will lose the interest of your readers. After that, at fourth level, you have to conduct research to answer the questions. What are your answers? In order to find the questions in order to find out the answers of your questions, it is necessary for you to make a research proposal, to conduct a research related to your questions, so that you feel easy while writing your report. At fifth level, you will draw a valid conclusion, the analytical and recommendation of your report. It's mean at this level you have to put all the suggestion and the recommendations that you feel that these are the recommendations, and these are the findings and the suggestions that are most appropriate for your writing and for your report. At sixth level, you have to be specified and again decide on recommendations, and what are the recommendations, and how can someone assess all the recommendations and all the performance related to that related to your recommendation that you have put in your report. And at last level, you will start writing the report while following these 6 steps. After that, you have to specify your report, which type of report that you want to highlight. Just like as we have narrative report, most widely used report in the type of report writing. And in this report, you have to put information and written a logical manner or sequence. All the cases, all the case studies and the formal narrations are written in this format. It follows a sequential manner of descriptions. All the steps are to be followed accordingly. It's mean the steps that we have discussed in the first slide. We are bound to follow all that steps. After that, the specialized report. It's type a summary of your report, a summary of report about specialized law enforcement and policies and police problems. Maybe either a narrative, chronological, or both. It may not follow a single pattern due to the different case types and descriptions. It's means specialized report totally dependent on the situation in which you are going to write your report.
Sometimes we are not bound to found all the steps or in all the plan structures that we have discussed in the first slides. We can make accordingly, we can make our own plan accordingly, just in order to organize our report writing, or just in order to report our any specified task that we want to express in front of our seniors, in front of any organizations, or in front of any others official persons. After that, if you want to write accidental report, so it is necessary for you to define the complete description of the accident. It's the type of descriptive in which you have to put each and every minute detail of that specified accident that you want to write and that you want to highlight. Suppose आपके पास एक फॉर्म में आपके पास कोई हादसा हो गया है और आपसे उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगी गई है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू पुट ऑल द डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू दैट हैपनिंग. आपको उसके बारे में अगर सारी मालूमात पुट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि फिर आप एक अच्छी रिपोर्ट बयान नहीं कर देते. इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन एंड द लॉस अकर्ड, और वो तमाम परेशानियां और वो जो पोजीशन जिसके अंदर ये अकर किया गया होता है उसकी भी बात करता है. और आप कह लें कि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम अपनी किसी भी फॉर्म के लिए एज ए बिंग रिकॉर्ड, और उस लॉस की भरमार के लिए, उस लॉस की पूरे करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, और ये मोस्टली अमूमन किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वी डिमांड accidental report, and the report that is being written over the incident that caused the investigations. At fourth level, sometimes we have to write non-chronological reports. Non-chronological report, the report that are not bound to follow the patterns and the parameters of the plan of your report writing. The purpose of this report is just to describe the way the things that they are. This type is mainly used in later non-fiction books, information leaflets, and sometimes catalogs. The opening contains a general classification, a description of chosen subject, then the paragraph about different aspects of the subject, and lastly conclusion. It's mean in non-chronological order you have to define the subject first of all. After that you have 2 or 3 passages related to that aspects that is being put in that report, or after that you have to make conclusion about your non-chronological report. ओके, लेट्स मूव. हम देखते हैं कि किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट को हम किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर यूटिलाइज करना चाहते हैं. Although there is no set report writing format, however, there are general sections that should be included. आप कह सकते हैं कि जी इसका कोई लगा बंधा कोई रूल तो नहीं है कि इट्स मीन यू आर बाउंड टू फॉलो दिस फॉर्मेट एंड वी हैव जस्ट दिस फॉर्मेट एंड वी आर बाउंड टू फॉलो this format, and it is not necessary to follow any specified format. It is totally dependent on the situation where you are. आपको रिपोर्ट की सिचुएशन के ऊपर भी समटाइम निर्भर करना पड़ता है कि समटाइम्स जो आपके लिए ऑफिशियल टास्क होते हैं दे रिक्वायर आउटलाइन, सम दे डू नॉट रिक्वायर एनी आउटलाइंस, एंड इवन दो सम आर रिक्वायर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, वाइल ऑन द अदर हैंड सम डोंट लाइक. सो वो अगली ये फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्म क्या चाहती है आपसे. आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो आपके लिए कि अथॉरिटी जो है, आपके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो व्हाट दे आर डिमांडिंग, वो आपसे डिमांड क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. बट एनी हाउ, although the format of all the reports cannot be one, but we have some specified and some major elements that can be found in all the types of reports. Unlike essay, reports are written in sections with heading and subheadings which are usually numbered. ये first है, ये second है, ये third point है, ये fourth point है. There are numerous possible formats available for writing a report, and it mostly depends on the context of the topic. As I informed you earlier, it is not necessary to follow a one specified pattern, one specified format or schedule of any report. It is totally dependent on the situation where you are and what do you want to write. ये उस रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, उस रिपोर्ट की सारी आप कह लें कि उसके मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, उसके मवाद के ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर निर्भर करता है. डिपेंडेंट होता है कि आपको किस तरह की रिपोर्ट लिखनी है. ये कॉन्टेक्स्ट बताता है हमें यहाँ पर आउटलाइन देनी है या नहीं देनी. फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिपोर्ट का फॉर्मेट मिलता है, और रिपोर्ट के फॉर्मेट में नंबर 1, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू पुट द टाइटल, एंड द टाइटल पेज मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पेज के ऊपर आपने टाइटल लिखा है और उस टाइटल के साथ ही आपने लिखना शुरू कर दिया है.
आपका टाइटल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए पेज के ऊपर। आप ऑल्दो आप रिपीटेडली इसे बयान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप टाइटल पेज को सेपरेट रखें। इट शुड इंक्लूड द टाइटल, योर नेम एंड द नेम ऑफ द ट्यूटर टू whom it is being submitted and the date of submission, your course department, the logo of the organization should also be printed. It's mean necessary for you to put the name, the person who is going to send the letter or the report, and the person to whom you want to submit that report. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम लिखना है, फिर उस पर्सन का नाम लिखना है जिसे आपने सबमिट करवानी है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस इंस्टीट्यूट का, टू whom you want to write and to whom you want to send that specified report. फिर आपको if you do you have any specified logo for that firm and that institution, तो उसे भी ज़रूर आप पुट करें अगर उस फर्म का कोई लोगो है, ताकि आप एक ऑफिशियली और ऑर्गेनाइज मैनर के साथ अपने टाइटल पेज को ऑर्गेनाइज कर सकें। आफ्टर दैट एट सेकेंड लेवल और सेकेंड स्टेप आपको वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट को पुट करना पड़ता है, और एक्नॉलेजमेंट अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव हेल्प्ड यू इन द कंपाइलेशंस ऑफ रिपोर्ट एंड अदर रिलेटेड वर्क। आपने यहाँ पर उन तमाम लोगों के नेम्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्म्स को पुट करना होता है जिन्होंने आप लोगों की मदद की होती है या आपको हेल्प किया होता है इस परफॉर्मेंस में। आपने जो रिपोर्ट लिखी है, आपने जो टास्क किया है, आपने जो थीसिस वो किया है, या कोई रिसर्च वर्क लिखा है, या कोई रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को सरजद करने में जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, जिन लोगों ने आपको गिव शोल्डर किया है आपके साथ, द पर्सन ऑल द पर्सन हु हैव गेव यू शोल्डर, जिन्होंने आपकी मदद की है, आपको सब उन लोगों की अप्रिसिएशन देनी है, उन लोगों का नाम लिखना है, उनकी डिटेल बतानी है कि वो क्या है और उन्होंने कैसे आप लोगों की मदद की और आप लोगों के काम के साथ क्या क्या उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है। इसमें आपको उसे भी वहाँ पर बयान करना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको उस कंटेंट पेज के ऊपर जाना है, जहाँ पर आपको उस पूरी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बनाना है कि पेज नंबर 1 पे ये है, कि पेज नंबर 2 पे ये है, पेज नंबर 3 के ऊपर ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 के ऊपर ये लिखा हुआ है। इट्स मीन आपको वहाँ पर कंटेंट को पुट करना है। पेज कंटेंट की बात की जा रही है। कंटेंट मतलब कि वहाँ पर वेल फॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस, आप वहाँ पर तमाम सेक्शंस की लिस्ट बनाएं, आप सब कंटेंट की बनाएं। आपके पास 10 आउटलाइंस हैं, तो नेसेसरी टू मेंटेन अ कंटेंट पेज। आप वहाँ पर कंटेंट आउटलाइंस बनाएं, इसमें जिसे आप आउटलाइन कहते हैं, वहाँ पर आउटलाइन बना के पेज के ऊपर कंटेंट, पेज के ऊपर आप जस्ट कंटेंट ही लिखें। वहाँ पर लिखें पेज नंबर 2 के ऊपर ये एब्स्ट्रैक्ट है, पेज नंबर 5 के ऊपर इंट्रोडक्शन है, पेज नंबर 4 के ऊपर मटेरियल है, पेज नंबर 5 के ऊपर आप कह लें कि उसकी एग्जांपल्स हैं। तो which type of material that you have to put all the content and all the outlines in one page, or that page is considered as your content page। आपको उसके ऊपर एक आप कह लें कि सबका एक जुट बनाना है, जिसे आप बाद में कंटेंट पेज कंसिडर करते हैं जी। फिर देन आफ्टर दैट यू हैव एब्स्ट्रैक्ट, अ समरी ऑफ द मेजर पॉइंट्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन शुड बी रिटन इनटू गिव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ योर रिपोर्ट। एब्स्ट्रैक्ट हम इसलिए लिखते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन को आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी रिपोर्ट के बारे में कुछ आइडिया कलेक्ट करना है और उसके पास टाइम नहीं है, और वो चाहता है कि हाँ उसके पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और वो कोई रिपोर्ट फाइंड करना चाहता है, तो वो जो रिपोर्ट फाइंड करना चाहता है तो वो जस्ट आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ता जाएगा। अगर उससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है तो जस्ट वो उस स्पेसिफाइड एब्स्ट्रैक्ट को उठाएगा, इसमें उस रिपोर्ट को उठाएगा और उस रिपोर्ट की डिटेल पढ़ लेगा। अगर उस आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते तो इट्स मीन द पर्सन हु हैव और हु हैज़ अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स एंड ही वांट्स टू फाइंड सम स्पेसिफाइड मेजर एस्पेक्ट रिलेटेड टू एन एक्सीडेंट, तो उसे वो एक्सीडेंट की रिपोर्ट ढूंढने के लिए वो सारी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, ये रिपोर्ट्स किसके बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का पर्पस ये होता है कि हम एक शॉर्ट सी ओवरव्यू सी एक समरी देते हैं, जिसमें हम कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और सजेशन के पॉइंट भी साथ में मेंशन कर देते हैं, और जिसमें हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया होता है, सजेशन रिकमेंडेशन बताई होती हैं, जिससे कोई पर्सन आइडिया लगा सकता है कि विच टाइप ऑफ रिपोर्ट दिस इज, ये रिपोर्ट किस किस्म की है और इसके ऊपर किस तरह का काम किया जा सकता है। एट fifth level you have to put your introduction. The first page of the report needs to have an introduction. You will have to define and you will have to explain your topic and your problem and what the reader want from you. रीडर आपसे क्या चाहता है और आपने उसे क्या पुट करके दिया है। रिपोर्ट आपने लिखी है तो वो रिपोर्ट लिखी क्यों है, why did you make this report, आपने ये रिपोर्ट क्यों बनाई, और what were the reasons behind this, और इसके पीछे क्या वजूहात थी, और वो आपको वजूहात वहाँ पर पुट करनी है। इस मीन आपको एक कम्प्रिहेंसिव सा इंट्रोडक्शन वहाँ पर पुट करना है एट 5th लेवल पे। देन 6th लेवल पे हमें वहाँ पर बॉडी बनानी है। इट्स द बॉडी ऑफ योर रिपोर्ट। बॉडी मीन ऑल द रिलेटेड मटेरियल। बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना होता है, बॉडी के अंदर जितने भी पैसेज होते हैं सब पैसेज को आपका उसका एक आप कह लें कि
मेन टॉपिक लिखना होता है हर पैसेज का, मेन टॉपिक के साथ साथ आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, और यू हैव टू डिफाइन एंड यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन related to all the information related to your topic, and after that you have to put their examples as well, or and put the conclusion in every body passage. आपको वहाँ पर एक पैसेज को डिफाइन करना है। बॉडी आपके ये किसी भी रिपोर्ट के सेंटर वाले 3-4 पैसेज हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और इसके अंदर आपकी पूरी रिपोर्ट का क्रक्स होता है, जिसे आपको वहाँ पर एग्जांपल्स के साथ, फिगर्स के साथ वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, और वहाँ पर अपने आप कहने का आपका लिटरेचर व्यू वहाँ पर पुट किया जाता है, मटेरियल आपका जो होता है वो पुट किया जाता है, डिफाइन जो किया जाता है वो उसकी आपको डिटेल वहाँ पर पुट की जाती है। इट्स मीन बॉडी जो होता है वह किसी भी रिपोर्ट का एक मेजर फीचर होती है। दिस नीड टू बी सिवरल सेक्शन विद ईच हैविंग अ सबटाइटल। इसके सब पार्ट भी हो सकते हैं, और हर पार्ट के अंदर हर पार्ट का अपना एक मेन टॉपिक होगा, उस मेन टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होगी, और उस मेन टॉपिक की डिस्क्रिप्शन के बाद उसका एक एग्जाम्पल होगी या 2 एग्जाम्पल्स होंगी। उसके बाद आप उसी पैसेज का कंक्लूजन करेंगे, और एट 7th लेवल पे आपको वहाँ पर कंक्लूजन करना है। या कंक्लूजन शुड ड्रॉ आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर फाइंडिंग्स। आपको वहाँ पर कंक्लूजन देना है, आपने फाइंडिंग क्या किया है, और आपने इसे इम्प्लीमेंट क्या किया था, और आपने इससे डिडक्ट क्या किया है, और इसमें से इंडक्ट क्या किया है, आपकी बॉडी क्या बताती है। इसमें आपकी बॉडी से मुराद आपकी रिपोर्ट की बॉडी क्या बताती है, क्या आपने वो फाइंड आउट कर ली, क्या आपने जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाहते थे, डू यू फाइंड ऑल द रिजल्ट्स दैट यू वांटेड टू, आपने क्या वो सारे निकाल लिए रिजल्ट्स, नताइज ले लिए जो आप वहाँ पर लेना चाहते थे। इट्स मीन आपकी जो क्वेश्चन से डिड यू गेट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, क्या आपने अपने सवालों के जवाब ले लिए वहाँ से, अगर ले लिए तो उनका कंक्लूजन पुट करें। व्हाट डू यू फाइंड एंड व्हाट डिड यू फाइंड एंड व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, आपने हासिल क्या किया था और आप हासिल करना क्या चाहते हैं, आप इन दोनों के अंदर बयान करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी फर्दर रिकमेंडेशंस यू पुट आल्सो पुट ऑल द रिकमेंडेशन इन योर कंक्लूजन पार्ट्स। आप वहाँ पर रिकमेंड भी करेंगे कि आपने आगे क्या करना है, और अगर इस स्टडी के कोई इम्प्लीमेंटेशंस हैं कि कहाँ पर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, तो आपको उसका भी एक पैसेज बना देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर at 8th level you have to put references, or this is a list giving the full detail of all the sources to which or from which you have made references within your text। आपको वहाँ पर अपनी टेक्स्ट को डिफाइन करना है कि किस तरह से आपने अपने टेक्स्ट को पुट किया है या डिफाइन किया है। ये था आपके पास एक प्लान, एक रिपोर्ट का आप कह लें कि फॉर्मेट था जिसे हम फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल के तौर पर रेलिवेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के आप एक एग्जाम्पल्स को पुट करता है। यहाँ पर देखते हैं इसे भी कि रिपोर्ट एज अ मीन्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, कि रिपोर्ट है क्या, रिपोर्ट एक इंटरनल कम्युनिकेशन की एक जरिया है। डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी डिस्क्राइब ऑल द इंसिडेंट्स that we have had in our आप कह लें कि जॉब, हम अपनी जॉब्स के दरमियान, टेन्योर के दरमियान जो हमें प्रॉब्लम्स आई होती हैं या जो हमने फेस किया होता है, हम ये एक कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने ऑनर्स को, आप कह लें कि अपने सबऑर्डिनेट को और कोऑर्डिनेट्स को। तो ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉय को एक फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। और इट इज़ प्रिपेयर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ अदर कनेक्टेड विद द मैटर एंड द प्रॉब्लम। और ये कह लें कि ये एक हेल्पफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो सबको लिंक, उन सब बंदों के लिए जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिनको पता होता है कि ये हमारे साथ मामला क्या चल रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें आगे कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो सारे ये बात को सामने जानते हों और उससे प्रॉब्लम को सामने रखते हुए अपने डिसीजन को ले सकें। फिर है जी, रिपोर्ट जो है एक फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग में, और किसी प्लानिंग में भी ये फैसिलिटेट करती है। अगर आपके पास एक रिपोर्ट निकली हुई है, आपने कोई डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पहले आप उसकी, आपके वर्कर्स ने उसके ऊपर कोई रिसर्च कर दी है, उसके ऊपर आपने क्या कहते हैं उसके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं आप, यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द वर्किंग रिलेटेड टू दैट स्पेसिफाइड इंसिडेंट्स। आप उस इंसिडेंट से रिलेटेड तमाम वाक़यात को उसमें लिख चुके हैं, जो आपको हेल्प करेगी कोई भी डिसीजन लेने में या कोई भी आपके फर्दर प्लानिंग करने में। कि पहले आपने प्लान किया था तो यहाँ पर ये पॉइंट्स थे, वहाँ पर ये पॉइंट्स थे, अब यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। इट्स मीन कि हमें कोई डिसीजन लेना है या कोई प्लानिंग करनी है, तो तब भी हम इसे अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर ये इट एक्ट्स एज ए ट्रेजर हाउसेज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप कह लें कि वाकई ही कोई लंबी आपने कोई पॉलिसी बनानी है
या आपने कोई डिसीजन करना है या कोई इन्फॉर्मेशन रिलायबल रखनी है, तो ये रिपोर्ट एक अच्छी चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसे आप ज़रूर समझना चाहिए और करना चाहिए। At next level you have your report discloses unknown information। ये तमाम hidden resources जो होते हैं, hidden information जो होती हैं, जो आपसे कह लें कि सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं, जो आपके नीचे कोई आप कह लें कि बदनवानियाँ की जा रही होती हैं, ये रिपोर्ट्स जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है, ये उस तमाम मामलात को भी रिवील कर देती है, वो खुलकर सामने आ जाती है इन्फॉर्मेशन जो हमारे बगैर चल रही होती है या जिनका हमें पता नहीं होता या जिनके बारे में हम समझ नहीं रहे होते। Reports provide information which may not be unknown previously. The committee members collect data, draw conclusion, and provide information which will be new to all concerned parties. It's mean ये वाकई ही helpful होती है। कोई भी report जब हम बनाते हैं तो ये officially reports किसी भी डिसीजन में या किसी भी प्रोग्रेस में ये बहुत कारगर साबित होती है। इवन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर विजिबल थ्रू अननोन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द रिपोर्ट्स। आप कह लें कि ये कोई भी रिपोर्ट जो होती है, अगर अच्छी रिपोर्ट निकली है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हुई है, तो वो किसी बिजनेस को अप कर सकती है। अगर आपने उसमें एक फेक मटेरियल डाल दिया है, फेक इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो वो जो रिपोर्ट है किसी भी फर्म को गिरा सकती है, उसे आपके लिए डिग्रेड कर सकती है। जी, एट लास्ट लेवल जो रिपोर्ट है वो आपकी जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है और उनको भी इंफॉर्मेशन देती है। आप कह लें कि ये रिपोर्ट आर अवेलेबल टू मैनेजर इन डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल यूज़, या इंटरनल डिपार्टमेंट्स के दरमियान यूज़ करने के लिए यहाँ पर पुट की जाती है। सपोज समटाइम रिपोर्ट बनती है डिपार्टमेंटल, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनती है। टीचर्स की जो है, लेक्चरर हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, इनकी भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनती है। उनके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, जो लेक्चर्स लिए जाते हैं उनके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, स्टूडेंट्स के फीडबैक को लिया जाता है, उसकी बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ ही चल रही होती हैं जिन्हें हमें आगे देकर बढ़ना होता है। और अमूमन के हम क्या कर रहे होते हैं, दे आर वाइडली यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द गाइडेंस एंड रिपोर्ट प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ एंड आर यूजफुल फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये पर्सनस की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बेहतर होती है और ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बेहतर होती है, जिसे हम कर सकते हैं। एट लास्ट, it's your reference. If you have any question, you can ask.